Hi kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th. So this is your one-stop solution for all the CBSE exams. And I am your educator Rashmi Singh. Yes, Rashmi Singh, your teacher. This is a little bit about me. I have done BTech in electrical engineering and I have got more than 8 years of experience and I have been mentoring students for IESO, NTSC Olympiads and CBSE boards, ICSE boards as well. So here's the link of my profile where you can go and get to know a bit more about me on the Unacademy Learning app. तो यहाँ पर मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ क्लास 9 और क्लास 10th के स्टूडेंट्स को. ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो that what are the best ways to answer the 5 mark, 3 marks and 1 marks question for the social science. Okay, so without any delay, let us start with our discussion. But before that, I will tell you a little bit about the Unacademy learning subscriptions. So guys, if you want to kickstart your preparations for CBSE class 10 exams, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि CBSE का जो मेरा पूरा का पूरा तैयारी है वो गेयर अप करना है, बहुत अच्छे नंबर्स स्कोर करना है, so you cannot do it without taking the Unacademy subscription. And once you take the Unacademy subscription, what are you going to get? You are going to get their daily live classes. Okay, तो ये live classes जो होती हैं, यहाँ पर जितने भी लर्नर्स हैं वो अपने एजुकेटर्स से बहुत अच्छे से एंगेज कर पाते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ऑल्सो दे गेट लाइव पोलिंग सेशंस. Other than that, we have live tests, live quizzes where you can keep a track of your performance, kids. एंड पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के फॉर्म में कवर होता है. यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू वट एवर चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी टॉट यू प्रीवियसली. जैसे रश्मि मैम है, उन्होंने जनवरी में कुछ पढ़ाया है. यू कैन एक्सेस those lectures always, anytime, with your flexibility, anywhere you can learn. Okay, now kids, the live classes are taken by the top educators of India. So on Unacademy, if you get the subscription, you get to learn from the top educators, #1 educators of India. And just in one subscription, आप सारे subjects पढ़ पाते हो, mathematics, social science, Hindi, science and English, all subjects. Okay, so you need not to worry about any of the subjects. In one subscription, you get all the subjects. You just need to download the Unacademy Learning app. CBSE Class 10 select करना है Manage Goal में और Get Subscription पे click करना है. उसके बाद बच्चों, you will be getting these many options to choose from. Like, I would suggest you to go for at least 2-year or 3-year subscription. Like now the WHO has also declared that we need to stay with coronavirus for at least 2 years, right? ये तरोताज़ा खबर है, कल ही खबर आई है. तो बच्चों, मेरा honest suggestion है that you should always go for 2-year or 3-year subscription, being a student in class 10. And if you use the code RSYT, which is my code, Rashmi Singh, your teacher, you're going to get a small discount, 10% discount मिलेगा. और लाइव लर्निंग का मज़ा ही कुछ हो, राइट? तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो और मुझसे जुड़ जाओ, प्लस पे पढ़ने के लिए आ जाओ. यू कैन ऑल्सो नाउ पे थ्रू EMI, UPI, डेबिट कार्ड. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. Now let us start our discussion. What are the best ways to answer the questions? So बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, हम पढ़ते तो बहुत मन लगा के हैं, and I think बहुत बार ऐसा होता है you and your friend is also working equally hard, but still you are not able to fetch as good marks as him or her. बस आप उससे हमेशा हर बार 0.5, 1 mark, 3 mark, 2 mark जो है पीछे रह जाते हो. ऐसा क्यों? It all depends on how you present your answer. Okay, so today I'm going to tell you the secret behind grabbing the marks from the teacher. ठीक है, आप आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे कि टीचर आपको खुश होकर के फुल मार्क्स दे देगा, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर. So without any delay, I will just start with the most important point. Okay, whenever you are writing the answer, you need to keep this point in mind कि आपको आंसर जो है वो 3 पार्ट्स में लिखना है. ओके, सबसे पहला इंट्रोडक्शन,
then main part, then conclusion, and the marks completely depends on how you frame the answer. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. अगर कोई भी इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट है, या कोई वॉर हुआ है, कोई अपराइजिंग हुई है, कोई मूवमेंट हुआ है, या फिर कोई रेवोल्यूशन हुआ है, तो उसमें 3 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखनी होती है. वन इज कॉज, that what is the cause behind that uprising. Let us say here French Revolution. French Revolution है तो उसके पीछे cause क्या है. Then you need to write how the event unfolded. Okay, like in case of French Revolution, there were many causes: political cause, social cause, economic cause, and intellectual cause. How the event unfolded, this also we know, right? People were really dissatisfied and they stormed the Bastille prison, and then a series of events took place and France becomes a constitutional monarchy. So this is what is called outcome. Okay, outcome क्या हुआ बच्चों, ये event का, कि फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है. ठीक है, तो ये एक तरीका है आंसर को फ्रेम करने का. अगर आपके दिमाग में फॉर्मेट क्लियर है, अगर आपके दिमाग में सीक्वेंस क्लियर है, सो यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस दोज, और यू विल बी एबल टू पुट इट डाउन इन द पेपर. ओके, तो जब भी कोई आंसर लिखना है ना, तो ये प्रैक्टिस में लाओ. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आंसर राइटिंग की, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 मिनट आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करो और आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है उसके बारे में सोचो. ठीक है, सो दैट यू कैन डिवाइड द आंसर इनटू 3 पार्ट्स: द इंट्रोडक्शन, द मेन पार्ट, एंड द कंक्लूजन और द आउटकम पार्ट. ओके, दिस इज क्लियर. Then now let us move to the next important point, which is, कभी भी आंसर आपको लिखना है, कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये हैं बच्चों. फर्स्ट है कि एसएसटी के अंदर आंसर जो है वो हमेशा आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करिए. ठीक है, वाई? बिकॉज एसएसटी इज़ अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट. एवरी आंसर इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी. सो मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द आंसर, and you are writing it in points. It becomes really convenient for a teacher to check the answer which is written in the points format. Okay, this holds true for other subjects as well. Like I don't know, English में तो इतना important नहीं है, उसमें तो पैराग्राफ में ही लिखना पड़ेगा आपको. But as far as I know, साइंस के लिए भी आपको आंसर पॉइंट्स में लिखना बेटर होता है. ठीक है. Now, second important point which is mostly ignored by students is the role a pen is going to play. Okay, देखो, हर student के लिए एक particular pen होता है जिसके लिए वो comfortable होता है लिखने में. ठीक है, and आपको क्या करना है, जब भी आप घर पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो थोड़ा मिक्स एंड मैच करो. देखो कि आपके कौन से पेन से हैंड राइटिंग सबसे अच्छी आ रही है, एंड वही पेन को आपको यूज़ करना है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट किड्स, कि जब भी आप पेन चूज़ कर रहे हो, तो कलर जो है वही रखना है जो सीबीएसई बोर्ड्स में अलाउड है. ब्लू ब्लैक पेन अलाउड होता है, या फिर जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आता है उसके ऊपर लिखा रहता है जब एडमिट कार्ड आता है कि कौन से कलर का पेन जो है वो अलाउड है. आपको मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दैट ओनली, अदरवाइज योर नंबर विल गेट डिडक्टेड. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर नॉट सपोज टू राइट विद अ जेल पेन, क्योंकि जेल पेन से आंसर लिखा है, कभी एक्सीडेंटली उस पर पानी गिर गया तो वो पूरा का पूरा जो इंक है धुल जाएगा. ठीक है, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी. ठीक है, दैट्स वाई आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स टू यूज़ अ प्रॉपर पेन, so that you can get a very beautiful handwriting. Okay, now third point is you need to underline the answers. Okay, आंसर के अंदर जो कुछ important keywords होते हैं उसको underline करना होता है. किसको करना होता है? कीवर्ड को. ठीक है बच्चों, अभी आई विल बी शोइंग यू 1 मार्क का आंसर कैसा होना चाहिए, 3 मार्क का आंसर कैसा होना चाहिए, और 5 मार्क का आंसर कैसा होना चाहिए. वी आर गोइंग टू एनालाइज इट completely. Okay, fourth is handwriting. Now frankly speaking, even my handwriting is also not very good. It is decent, but it is not very good. Okay, so in case you also do not have a very good handwriting, need not to worry. What you need to do is, kids, कि जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हो वो बहुत अच्छे स्पेसिंग के साथ लिखो, ताकि आपका जो आंसर है वो पढ़ने में
दिखने में अच्छा लगे और पढ़ने में भी इजी हो। हैंडराइटिंग अगर ख़राब होती है तो ऑब्वियसली टीचर को हैंडराइटिंग पढ़ने में थोड़ी तो प्रॉब्लम आती है। तो मेक श्योर अगर हैंडराइटिंग ख़राब है तो पहले तो इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर गैप्स में लिखिए, और हमेशा एक पॉइंट लिखा है एक लाइन आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर काफ़ी क्लियर दिखेगा और प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एक आंसर के बाद तो डेफिनेटली आपको 2 लाइन छोड़ करके नेक्स्ट आंसर अटेम्प्ट करना है, ओके, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। नाउ 5th पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपके लिए ईजी है। मेक श्योर कि स्टार्टिंग का जो आंसर है वो अच्छा आंसर हो, जिससे टीचर इम्प्रेस हो जाए। लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, राइट, वी ऑल नो दिस। सो टाइम मैनेजमेंट करो, जो सेक्शन में कॉन्फिडेंट हो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको स्पेशली थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर आंसर करिए। आप लोग थोड़ा टाइम सोचने में भी आपको देना पड़ेगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, इफ़ यू वांट टू राइट अ परफेक्ट आंसर, ओके। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू नीड टू राइट द आंसर टू द पॉइंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 5 पॉइंट्स बनाने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम ही पॉइंट को अलग अलग फॉर्मेशन में सेंटेंसेस के लिख लिख के और पन्ने भर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर वैलिड पॉइंट्स हैं तो उसी को लिखो, बार बार सेम पॉइंट को घुमा घुमा के लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टीचर को समझ आ जाएगा कि तुमको आंसर नहीं आता है, okay? So all these are the points which you need to keep in mind while writing the answer. Now, how to write a 1-mark question? So here I have taken the answer of a topper, जो कि मैंने CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। CBSE स्टूडेंट्स पोर्टल में एग्ज़ाम मटेरियल होता है, हर साल के टॉपर्स के आंसर शीट जो है वहाँ पे अपलोडेड होती हैं। यू कैन ऑल्सो गो देयर एंड डाउनलोड इट बाय योर सेल्फ, खुद भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने 2019 का जो टॉपर है उसकी आंसर शीट को डाउनलोड किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आंसर है वो आप एज यू कैन सी कि यहाँ पर एक तो सब्जेक्ट जो है वो लिखा है इसने, या तो इसने लिखा होगा या फिर हैंडराइटिंग में डिफरेंस है, तो हो सकता है CBSE वालों ने भी कॉपी चेकिंग करने के दौरान लिख दिया हो, ठीक है। नाउ द हैंडराइटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज नॉट बियॉन्ड ब्रिलियंट, ओके। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सुपर्ब हैंड राइटिंग है, एक एवरेज हैंड राइटिंग है। इससे भी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग्स मैंने देखी है स्टूडेंट्स की, जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी साल से पढ़ाते हुए आ रही हूँ। तो इसकी हैंड राइटिंग जो है वो एक एवरेज हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगी लेकिन बुरी तो नहीं है, ठीक है। तो यू कैन सी द स्पेसिंग इज़ ऑल्सो क्वाइट मेंटेन्ड, सो दैट जो आंसर है वो काफ़ी अच्छा दिखे, क्लियर दिखे। हर वर्ड के बीच में बहुत अच्छी स्पेसिंग मेंटेन की गई है, आंसर को पॉइंट्स में लिखा गया है, और आंसर के बाद एक लाइन का, लगभग 1.5 लाइन का, ये तो देखा जाए तो 2 लाइन का जो है वो गैप दिया गया है, और बीच में एक लाइन भी ड्रॉ की गई है वंस द आंसर इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो, एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल जो है वो कीवर्ड है, इसीलिए इसको अंडरलाइन किया है। आंसर जो है वो कीवर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही वर्ड लिख के छोड़ दो, आंसर जो है वो कंप्लीट सेंटेंस में होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू ऑल्सो, कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ड लिख दिया, आप कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखो, सो दैट टीचर को क्वेश्चन पेपर नहीं उठाना पड़े बार बार आपके आंसर को चेक करने के लिए। ये चीज़ को दिमाग में रख करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड किड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी इज़ दैट अगर आपके MCQ के क्वेश्चन आते हैं तो सपोज करो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, तो आप सिर्फ ऑप्शन ए लिख करके मत छोड़ो। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं है तो फिर आप यहाँ पर वो वर्ड भी मेंशन कर दो, वो इससे थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिल जाती है कॉपी चेक करने वाले को। तो 1 मार्क का आई थिंक काफ़ी क्लियर है, हमें कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखना है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, एक आंसर के बाद 2 लाइंस का गैप रखना है।
नाउ व्हेनेवर वी कम विद अ 3 मार्क क्वेश्चन, हमें क्या करना है, आंसर जो है वो कंप्लीट कंटेंट के हिसाब से देना है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अधूरा 3 पॉइंट लिख दिया तो काम नहीं चलेगा। इस आंसर को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, एक पॉइंट के अंदर दो दो चीज़ें, तीन तीन इन्फॉर्मेशन जो है, दो तीन इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है, सो दैट ये पूरा का पूरा आंसर जो है वो अपने आप में कंप्लीट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस भी लिखना था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बीच में। तो इस पर्टिकुलर टॉपर ने कैसा आंसर लिखा है, दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज डन टू ग्रो क्रॉप्स सो एज टू सस्टेन फॉर द फैमिली ऑफ द फार्मर। ये यहाँ पर किस लिए ये खेती की जाती है, सर्वाइवल के लिए। कमर्शियल फार्मिंग, दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज डन टू प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर सेलिंग इन द मार्केट। कीवर्ड्स मेंशन्ड है। दिस इज डन यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स लाइक डाउ डिगिंग स्टिक विद द हेल्प ऑफ फैमिली। यानी कि यहाँ पे टूल्स के बारे में भी बात कर ली, लेबर के बारे में भी बात कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, इंटेंसिव टूल्स होते हैं, वेज लेबरर होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट के अंदर दो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किया है। लास्ट पॉइंट में देखते हैं हम, द फार्मर डिपेंड्स ऑन द नेचुरल फर्टिलिटी एंड रेन। तो नेचुरल फर्टिलिटी यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करते हैं। इरिगेशन के बारे में भी बात कर लिया। प्रोडक्शन इज लो, इसके बारे में भी बात कर ली। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन पुट ऑन किया है स्टूडेंट ने, यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 1 इन्फॉर्मेशन, एंड दैट मेक्स द कंप्लीट आंसर। तो आपको भी सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, भले उसको आप 3 पॉइंट में लिखो, सारे इन्फॉर्मेशन लिखो, मिस आउट मत करो। दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क क्वेश्चन इज आई बिलीव ईजीएस्ट वन। हमें लगता है 5 मार्क क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट होगा, बट एक्चुअली में सबसे इजी होता है। आपको क्या करना है, आपको 5 पॉइंट में आंसर देना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट द आंसर इन मोर देन 5 पॉइंट्स, बट मेक श्योर कि आंसर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो, आधा अधूरा ना हो, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स में आंसर लिखना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, हर पॉइंट के बाद 1 लाइन का गैप होना ही चाहिए, अदरवाइज आंसर विल लुक वेरी क्लमजी एंड बहुत ही प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा। कभी भी कुछ मिस्टेक हो जाता है, अगर आपके आंसर में कोई वर्ड गलत हो जाती है, तो ये देखा, आप देख रहे हो, आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कट किया है उस वर्ड को, कोई खिचड़ी नहीं पकाई है ऐसे ऐसे करके। दिस लुक्स वेरी बैड। आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन से कट करना है जब भी कुछ गलत हो जाता है तो, ठीक है। वाइटनर कभी भी नहीं यूज़ करना है बच्चों, वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर, ओके। So, and one more important point which I have left is how to answer the map questions. तो मैप वाले क्वेश्चन में बच्चों बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपको मैप की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, उसके लिए एक बुक भी आती है मैप स्किल की, अरिहंत की, वो भी आप ले सकते हो। अदरवाइज जो आपके मैप वाला क्वेश्चन होता है उसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, यहाँ पे बॉक्सेस दिए होते हैं नेम करने के लिए। कई बार बच्चे यहाँ पे मार्क करना भूल जाते हैं और इसके अलग से मार्क्स होते हैं। So you may lose 0.5 marks if you don't do this markation, okay? तो आपको ये जो है यहाँ पर मेंशन करना ही करना है, जो भी आप मैप में सिंबल यूज़ कर रहे हो। लाइक सपोज ये इंडिया है और यहाँ पर लैटेराइट सॉइल मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पर भी मुझे वो डिज़ाइन, मतलब वो सिंबल बना करके मार्क। So I hope you have got a very good clarity on how to write the best answers, and you should, I hope you will always use all these small tips, ठीक है। तो इसको यूज़ करो, बेस्ट आंसर्स लिखो, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली है, गिव अ थम्स अप, subscribe to the channel if you have not subscribed it yet, hit the bell icon, and whenever you think like taking the subscription for Unacademy, make sure you are using this code RSYT, Rashmi Singh, your teacher. You will be getting 10% discount, and you will get an exposure to the world full of learning, fun learning, ठीक है। बहुत ही इंटरैक्टिव लर्निंग करनी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ लर्निंग करनी है,
तो आप अनअकैडमी पे आइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ पे मेरा जो नया रिविजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों, उसको ज्वाइन करिए। आई एम गोइंग टू लॉन्च द न्यू रिविजन कोर्स, जिसमें पूरा कंप्लीट डिटेल में मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ सोशल साइंस का, फ्रॉम 1 September. सो मेक श्योर यू टेक द सब्सक्रिप्शन दिस मंथ. थैंक यू. टेक केयर.